Hello, everyone. Good evening to all of you. In this session, we are going to see how to begin with Android development, how to start your journey, how and do you what what you need to start Android development, and why do you want to start an Android development, and what's the future in this field. Then we will see about what do you need beforehand before starting the Android development. Then we will see from where will you need the resources, where are the courses, free courses available, YouTube tutorials and books and all. Then we will see about what are the various fields you can work in. There are numerous number of fields in Android development. You can work with many platforms. You can work on many platforms through in numbered applications. And at last, we will accept some question and answers. Then we'll end the session. Right. So let's start with introduction. So what is an Android? Android terms generally made from two words. Andro means man, Android means a robot. So Android, the term comes from the mankind robot, a type of robot which is connected to a man looking. So, in theory, it's an operating system just like Windows or Linux or Ubuntu and whatnot. So, it's a operating system which is based on Linux kernel. It was generated in approx 2004, I think, and it's an open source. It combines with Linux kernel and plus with some open source software by Google. So it is primary for touchscreen mobile devices such as smartphone, tablets, smartwatch, TVs, and nowadays it begins its journey in smart cars also. So as you can see, there are many multiple fields that you can work in this development. So when the when the device goes from just working to actually making the life easier, Android is behind it. As you can see, everywhere Android is there. So if you are in home systems, Android OS is working in your mobile phones, in your smartwatches, and all of the Android is there, and it is making your life easier, right? So just to give an example, there's a GPS avoids traffic. How the map will tell you whether there is a traffic or not. It's Android. It's OS that sends this data without you knowing about it, right? So it can assist you in directions as well. It's an operating system with 2.5 billion active devices currently, which is increasing in upcoming years, and it will increase. It will going to increase soon, right? It's open for creativity. It's up to you how much you can give to a user from your applications, from your tools and whatnot. So it's up to you. It's up to your creativity that will lead to your the development of your applications, right? So it gives a birth to three different fields. It's for developers, designers, and device makers. Yeah, so people can more experiment with these tools, imagine and create things that words has never seen. So again, I'll tell you, it's all about creativity of your own, right? So the fun fact about Android operating system, it was developed initially for digital cameras and not for smartphones. It came in later stages about the smartphones. So that's the introduction about it. Then we comes to motivation. Why do you want to be an Android developer, right? So what it is in for you? For why do you want to opt for Android development rather than web development, right? Or iOS development? So we see in generally in India, what we see is there are a many number of people using Android. iOS is fairly new in India, right? So it's a very in future in Android development is in much less competition. So you will get a job easily, and as you can see from this graph also in 2009 when the Android first came into market as a
within a smartphone. It is quite less than 10% capturing the market. The major one is Symbian, right? So as we go, as the year passes, it grows its users. It because of its versatile nature, without because of its creative tools and development kits that makes it user friendly, and it attracts a lot of people, right? So you can see it's now capturing approx 87% share of the market worldwide, right? Then there's always a bright future for Android developers in India because of 760 million current users, and these numbers are growing, and it will grow in upcoming years. So organizations where you will get the job majorly in Google, because it's a Google product. Intel, because of its processors, so Intel hires Android developers. Facebook, as you all know about WhatsApp, Instagram, and Facebook, they all need Android developers to work on their products. That led Uber, Hike, Swiggy, Zomato, and many more. These apps require Android developers for their app to work upon, right? So industry, what kind of industry it captures? It captures every industry possible. As you can see, from travel to gaming to healthcare to financial banking, everywhere Android is using. Recently, NASA also uses Android smartphone, Android operating systems in the space stations for seeing their working conditions, for seeing whether it's optimal or not. So it's in the NASA as well, and in many fields it is growing, it's trending, it's getting trending every year. Yeah, right. So for a fresher, just after you graduate, you can receive a salary from 3 LPA to 10 LPA as a fresher. It's not just about that. If you do the Android development, you are limited to 10 LPA. You can opt to another field as well, but it will act as a backend, as a backup option for you, right? So let us see, what do you need in the for to be an Android developer? What are the prerequisites required for Android development, right? So there's a backend. Backend means where you will write the code. You will where you will where you will tell about what kind of function will react on a click of a button, or what do you want to, if whether you want to fetch from data from the database, where do you want to share a data, and where do you want to create a notification and all. So that's called a backend. So in backend, first of all, you will need to learn coding. If you know coding in any language, it's not limited to Java. If you know about C++, Java, it's all fine. The basic thing is you need to know about the OOPS concepts and the data structures and algorithms that are required for the basic coding, right? So personally, me, I don't know, I didn't knew about Java when I started the Android development. I know about C++ because of my 12th syllabus. So I knew about C++. I built my Java programming based on that, and yeah, it works quite fine actually, right? The Kotlin, yeah. So we have one of our great alumni, Saurabh is here. He has an experience of the Android development for around 5 years now, I guess. So we will also talk to him. Please continue. Yeah. Please continue. Okay. So the Kotlin is a fairly new language that comes around 4 to 5 years ago. Yeah, it's now an official language in Android development, and it's a most preferable language rather than Java, because Java is stopped its making updates in this field. So Kotlin is a new programming that you can choose, right? There is another language called Dart, which comes with Flutter. Flutter is a front end tool, and Dart is the language behind it.
So Dart is also very new to market, but it's capturing a lots of Android developers. And we can see that Flutter is a cross-platform tool, right? So what a cross-platform means is you can build a code, and the same code will run on Android tablet, mobiles, web, uh, laptops, and every other platform. So it's a better thing to learn a cross-platform tool rather than just a particular thing, right? For example, Java. If you learn Java, you are limited to this Android development only, right? But if you learn on a cross platform thing, then company will prefer cross platform developers rather than the single developers, right? So cross-platform may include Xamarin, which was there, but it doesn't capture the market enough. React Native is the present best platform there for, as you know, about Instagram and Skype. It builds upon React Native. Right? Flutter is quite new. It's around 2 to 3 years back, and it already became the second best in the cross-platform, and it will, I think, overpass the React Native, and it will be the best tool for cross-platform Android development, right? So now comes to front end. What do we need to know about the front end? Front end is actually the user interface. The people that see on their screen is known, and it can interface with them. It can connect app with the user. That's called a user interface, right? So for this, you need to have an understanding of XML language. It's a fairly simple language. It is actually similar to HTML. You must have used once in a while your HTML programming language for web development. So in Android we use XML. XML is used with Java and Kotlin. I think I don't know about React Native, but you can Google it and find out for yourself. There is a Flutter, which is based on Dart language, and it's also a very good uh, tool to learn. Right? So material design, it's actually a standard way of designing particular screens, particular icons, and particular widgets and all. So right, like if you have to make an icon, so what's the dimensions of it, the standard dimensions needed to be. So that is taught by material design. It's a concept actually. Then other things that you need to know are databases. These other things you can learn on the way of learning Android development. You don't need previously, I mean, you don't need beforehand about these things. You can learn on the way, but a little bit knowledge is required, right? Then there's system requirements for Android Studio. It's a Android Studio is a tool where you will build the Android application. It's a very heavy application, so yeah, a minimum of 4 GB RAM is required. But if you are going to test in an emulator within a device, so you will need a minimum of 8 GB for fluent performance, because it will hang your system if it is less than 8 GB, right? You can also test your applications on your Android smartphones, but it's a hassle to actually connect with Android smartphones for a new user. So you can start with emulator, and on a way you can opt to with Android mobile phones and all, right? You will need data structures and algorithm that I've already covered about. I've already talked about why do you need coding in this. Right? You need to learn about data, about the data structures and basics algorithm, not the advanced, just the basic like sorting, searching. You must know beforehand, right? Time is you have to give a minimum of 2 to 3 hours every day, and if you are going to take an interest in this development, you won't even feel like passing this time. So I remember I've passed about 5 to 6 hours sitting in one place coding, and I don't feel the time is passing by, right? So if you enjoy this coding in Android development, you will
see how it is fun thing to do, right? And meanwhile, you can learn a thing, you can build your career out of it, right? So about the cost of how much money you can put in this. So it's minimum to zero. So you can start with zero. Like me, I haven't spent a single rupee on learning the Android development. It's all in the internet. Thus, you have to look where to. You have to know where to find these items. Right? There are numerous good, very good sources available. Right? And maximum is already of course the sky is the limit, so you can spend all you want. So path for a developer, where do you get these courses, right? So I personally use the Udacity courses that are available, that are backed by Google itself. So it's a very good source for a starter, right? So these are the 5 of the links that I have showed you here. These links are must follow in the same order. It covers about the Java, the networking phase, the database phase, the input phase, the multi-screen apps. So these are all the required things that you will learn in your fundamental learning of this Android development. There are other sources may include Udemy courses, or some professional coaching institutes also taught these developer courses like coding blocks, coding ninjas. So you can prefer, it's upon you how much do you want to learn, how much do you invest your time in. So it's up to you. YouTube videos, you can there's no perfect playlist on the YouTube that I've found, but it's upon your need, right? So during your development, if you want to include some particular thing, right, some you have to include a list. So just for a particular use, you can refer to the YouTube videos and books in the library. That there are 2 to 3 books on Android in our Jamia library. One is O'Reilly's Android Cookbook. It's a good book. I've referred to it, and it's a really helpful one. So if you join the college, you can have this book, and it's a good starter, right? Then there are applications. In which field are you going to work on the Android development? Right? So there's a healthcare, Medscape, MedPage are the few examples of healthcare apps. Right? So you can work on this field. My minor project was on this field. I've developed an Android application that uses sensors in the mobile phones, like back camera and microphones, and the internal sensors that will predict about your blood pressure, heart rate, heartbeat, and all that. So it's upon this healthcare. It comes under the healthcare development, right? Then there is a social field like WhatsApp, Snapchat, Instagram. You can build your own social platform that people can use. If you can give enough services to them, then you can also be a millionaire by developing a good social platform. Right? There are educational fields like Udemy, edX, Duolingo. These are multiple applications that work on an educational platform. There are marketing platforms like Amazon, Flipkart, Myntra, where you buy and sell stuff. These are big businesses that runs solely on Android applications, like Android or web applications. So it plays a big part in these businesses. Then there is a business aspect like Feedly, JStocks, that is getting trendy nowadays about the stocks or the cryptocurrency and all. So it also needs a face. So Android gives a face to these businesses as well. Then there are financial needs that we use in our everyday life, about Paytm, PayPal, Google Pay, or banking like SBI, banking system and all. So it's also getting a trend in big cities, obviously. Then there is a gaming platform like PUBG, Free Fire, Candy Crush. You name it.
Android has given the platform gaming platform much more preference, right? So it's a growing thing as well. Then of course you can integrate AI and ML in the applications that you may learn after your Android development or during your Android development, like I did. So you can integrate things upon on the tools available that are provided by Android, right? So there is a camera which gives enormous ability for an ML or AI model to work upon, right? So there are gaming bots, chat box, AI controlled enemies, and all that. So it's the limitless applications in the Android development. Then, and what trends are nowadays in the what other different platforms that Android developer sees he can work upon, right? So it's a enterprise focus that I've already told about, the business aspect of a particular platform, right? Wearable devices like smartwatches and all, IoT, like Google Home, and multiple devices that can use Android operating system that works upon the code, the applications that you write in the Android development platform. There is a virtual reality that's getting trendy nowadays as well. Virtual reality, augmented reality, and all that. Cloud computing is a new thing, but it will capture the market more in, especially in India. So it's a good platform to start with. You can look upon these platforms, and based upon your ability, you can use it and work upon it. Right? There's a security aspect which Android, especially Google, focuses on right now. So you can work upon these security aspects as well. Then there's an accelerated mobile pages. Of course, the speed is everything nowadays, so you will work upon optimization lots and lot of times. So it's also a good thing. So we have come to the conclusion of this session about how you will start the Android development, right? So if you are having any questions, feel free to ask. Hi. Sanas will handle all the like development related questions, and our alumni or a Bhaiya will handle all the career related questions. Okay, so please start asking. You can start ask on chat and also on mic. You can obviously ask directly, and you can ask on mic. Okay, one thing I okay, yeah. So let's start with unless my question is like Yeah, if I go for React Native yeah, rather than the core Android yeah. development, so how good it is? Like, React Native is obviously better than the core Android development because you can work upon multiple platforms at one time, and company generally prefers to have a employee as a multiple platform knowledgeable about multiple platforms. So it's better, always better. But if you want to, aim for a particular company, right? So like if you want to work upon in a Google team, right? So they do generally they work upon the Android platforms, Android studio or Android system design and all. So you can work upon the core aspect of it. So it's upon you where you wanna be, right? okay, Saurabh, yeah, like what is the Yeah, aspect hello of everyone. job in it? Like, how will I get a job, or how Yeah, difficult first of it is all, to get a job? yeah, thank you, Anas. Yeah, sure. क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? Thank you, Anas, for the session. And Yeah. किसी को कोई अगर डाउट हो रिगार्डिंग नॉन सीएसई मतलब सीएस बैच का नहीं है कोई, लेट्स से सीएस ब्रांच नहीं है, एंड रिगार्डिंग कोडिंग एंड ऑल, किसी को अगर डाउट हो तो दे कैन आस्क करियर पर्सपेक्टिव से एंड ऑल Yeah, sure. रिगार्डिंग डेवलपमेंट या करियर पर्सपेक्टिव. So ओके, एंड या फैजल तेरा क्वेश्चन क्या था?
हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब कि हाउ क्या बोलते हैं, अगर मुझे जॉब में जाना है तो कितना मतलब कि इजी या आसान है, या फिर और क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जॉब में जाने के लिए किसी भी एंड्रॉइड डेवलपमेंट टीम में अगर हमको हायर होना है? इट टोटली डिपेंड्स, इट टोटली डिपेंड्स। एंड्रॉइड में क्या सीन है अभी कि देयर इज नेटिव एंड्रॉइड जो कि जावा और कॉटलिन वाली एंड्रॉइड है जो हम एंड्रॉइड स्टूडियो में करते हैं। देन देयर इज रिएक्ट नेटिव, देन देयर इज फ्लटर भी आ गया। तो डिपेंड्स ऑन द कंपनी, कंपनी क्या अप्रोच ले रही है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज इंटर्निंग एट मेक माई ट्रिप, तो मेक माई ट्रिप की जो पूरा एप्लीकेशन है डेस्कटॉप आईओएस एंड्रॉइड सब रिएक्ट नेटिव पे लगा हुआ है। मतलब सिंगल कोड बेस है उनका, सारे प्लेटफॉर्म पे चलता है। बट देयर आर सर्टेन कंपनीज जो जावा कॉटलिन का यूज करते हैं। लेट्स से सैमसंग में था मैं, तो दे वर यूजिंग जावा एंड कॉटलिन वाली एंड्रॉइड। So it depends upon the company to company. But if you want to learn Android, then directly jump onto Java and Kotlin wali Android. There you will learn a lot. Plus, it's better to learn it by doing projects. Like एक particular app बनाई, GitHub पे डाल दिया, and let's say GitHub पे डाला, या let's say you want to present that in an interview, YouTube पे वीडियो बना के डाल दी। तो और let's say प्ले स्टोर पे अकाउंट है तो प्ले स्टोर पे उसे लॉन्च कर दिया, तो इससे काफी इम्पैक्ट पड़ता है। इंटरव्यू में तुमने अपनी वीडियो प्ले करके दिखा दी ऐप की, तो दैट इज काइंड ऑफ रियल टाइम। ओके, ऐसा हो जाएगा। ओके, मैं एक शेयर करता हूँ लिंक, बाद में देख लेना इसे। मैंने कुछ ऐप्स बनाई थी कॉलेज टाइम पे, तो जो मैंने यूट्यूब पर डाल दी, तो ये काफी क्या रहता है, इंटरव्यू के टाइम पे डायरेक्टली इस वीडियोस को ही हम दिखा सकते हैं पर्टिकुलर ऐप्स की। तो ये गो थ्रू कर सकते हो। बाकी इफ यू वांट प्ले स्टोर पे अकाउंट भी खोल सकते हो, वहां पे भी डायरेक्टली लॉन्च कर सकते हो आप, वो भी प्रीव्यू देने के लिए सही है। बाकी गिटअप तो गिटअप इज लाइक गिटअप की पूजा करना। नहीं, मैंने रिएक्ट नेटिव पे काम नहीं किया, मैंने नॉर्मल एंड्रॉइड पे करा, जावा एंड कॉटलिन। मतलब कि तो ये गिटअप का लिंक है, जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे डायरेक्टली लॉन्च इट ऑन गिटअप। गिटअप पे काफी सही रहता है, कंपनीज डू लुक आउट ऑन योर गिटअप अकाउंट। कभी कभी कोड भी चेक कर लेते हैं गिटअप पे, लाइक कोडिंग स्टाइल क्या है, कैसे कोड करा है एंड एवरीथिंग, कंसिडरिंग तुम एंड्रॉइड डेवलपर रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो। प्लस रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में भी हेल्प करता है काफी, अगर प्रोजेक्ट हो तुम्हारे पास। डीएसएलगो तो होना ही चाहिए ऑब्वियसली। बेसिकली प्रोजेक्ट्स ही तुम्हें आगे हेल्प करेंगे प्लेसमेंट्स के टाइम, राइट? ओके, कोई रिएक्ट नेटिव वाला क्वेश्चन पूछ रहा था। हाँ बोलो, क्या था क्वेश्चन? हाँ जी भाई, आपने रिएक्ट नेटिव पे काम किया है? हाँ, वो क्या मैंने किया है? नहीं यार, मैंने नहीं किया। तो आप कुछ बता दिए उसके बारे में। देखो यार, रिएक्ट नेटिव का बेसिक प्रीरिक्विजिट तो रिएक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा रिएक्ट अगर आ जाएगा और जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा आ जाएगा तो रिएक्ट नेटिव में काम करने में कोई मतलब इशू नहीं आता। थोड़ा बहुत तुम मतलब कि अगर ट्यूटोरियल वगैरह देख लोगे ना तो आसानी से रिएक्ट नेटिव में स्टार्ट हो सकते हो। रिएक्ट नेटिव इट इज नॉट कि बहुत लेंदी, तुमको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा स्टार्ट करने से। थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा रिएक्ट प्रीरिक्विजिट है, ये दोनों है मतलब कि वो कहते हैं प्रीरिक्विजिट। और क्या होता है, तुम एक्सपो से स्टार्ट कर सकते हो, बहुत ज्यादा उसका वो नहीं होता। एक्सपो में तुमको कुछ इंस्टॉल नहीं करना है, एंड्रॉइड स्टूडियो भी तुमको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता एक्सपो में, ठीक है। हाँ, वो तो बारकोड से स्कैन होके उसमें होता है मोबाइल में सारा सब कुछ। हाँ हाँ, बट मतलब कि आई प्रिफर मतलब कि रिएक्ट नेटिव, जहाँ पे हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं कोर ऐप बनाते हैं, ताकि मतलब इंटरनल भी छेड़ सकते हैं। तो उसमें रिएक्ट के सारे वो चल जाती हैं लाइब्रेरीज रिएक्ट की। हाँ, जावास्क्रिप्ट की रिडक्स भी चल जाती है पूरी रिडक्स। हाँ, जावास्क्रिप्ट की जितनी लाइब्रेरीज है सब चल जाती हैं, कोई इशू नहीं होता। और रिएक्ट नेटिव का अपना भी एक बहुत अच्छा वो है, लाइब्रेरी सेट है, तो वो भी मतलब अच्छा से एकदम चल जाता है। तो अगर जावास्क्रिप्ट आता है, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी साथ काम करा, तो हर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी लगभग चल जाती है। नोड जैसे स्पेसिफिक भी चल जाती है, बहुत सारी नहीं भी चलती है। डिस्क्लेमर है। पोस्ट क्या करती हैं रिएक्ट नेटिव का? वो नॉर्मल एंड्रॉइड ऐप की तरह हम लोग क्या बोलते हैं प्ले स्टोर पर डाल लेते हैं। इसे ऐप फाइल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तुम अभी एक्सपो पे हो ना? हाँ ठीक है, हम मतलब कि बैक एंड से भी तो जोड़ना पड़ेगा। हाँ हाँ, बैकएंड से जुड़ना पड़ेगा, लेकिन ये बैकएंड वाला क्लास है नहीं तो हम बता देंगे उसका, तुम हमको डीएम कर लेना। ओके ठीक है, और कोई क्वेश्चन? रिएक्ट थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब एंड्रॉइड स्पेसिफिक रहे तो ज्यादा बेटर है। बाकी किसी का क्वेश्चन है फॉर मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट, यार एक 4 GB रैम पे चल जाएगा, ओके, बट बेटर हो अगर 8 GB रैम हो तो स्मूथ चलेगा।
एंड ये developer.android.com/jetpack का भेजा है मैंने लिंक। जेटपैक अगर किसी को एंड्रॉइड डेवलपर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है या फिर स्पेसिफिक एंड्रॉइड डेवलपर रोल के लिए देख रहा है, दे नीड टू नो दिस जेटपैक। ये लाइक करंट ये चल रहा है मार्केट में। जेटपैक इज काइंड ऑफ गूगल ने सेट ऑफ लाइब्रेरीज अपनी तरफ से बोल दी है, लिस्ट आउट कर दी है कि फॉर अ बेटर एंड्रॉइड डेवलपर, गुड एंड्रॉइड डेवलपर, टू हैव गुड नॉलेज ऑफ डिजाइन पैटर्न, किस तरीके से तुम कोड लिख रहे हो एंड ऑल, यू हैव टू हैव नॉलेज ऑफ दिस सेट ऑफ लाइब्रेरीज व्हिच आर अंडर दिस जेटपैक। तो इसमें सब आता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, तुम रेट्रोफिट यूज कर रहे हो, एमवीवीएम आर्किटेक्चर यूज कर रहे हो, वो सब। तो जेटपैक में लिंक पे देख लेना, वो स्पेसिफिक तुम अपने से सीख सकते हो नेट पे देख के। बाकी ये यूडासिटी के कोर्सेज हैं जो फ्री कोर्सेज हैं एंड्रॉइड के, ये यू कैन ट्राई। बाकी कोई नॉन सीएससी का नहीं है क्या आपके, लाइक सीएस का नाउ एंड ही वांट्स टू गो इनटू कोडिंग? हमें बता दी हमें कि कैसे करना है, हमें बताइए। भाई पूछिए। मतलब कि देखिए, अगर मेरे को मतलब कि कोर एंड्रॉइड स्टार्ट करना है तो फॉर अ पर्सन मतलब जिसे कोडिंग नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, वो मतलब उसके लिए क्या होता है, पैटर्न क्या होना चाहिए, क्या पाथ होना चाहिए उसके लिए, जिसे कोडिंग मतलब जीरो आती है लगभग, लाइक कि कॉलेज से निकले मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं है कोडिंग का। यार जीरो कोडिंग आती है तो एंड्रॉइड सीखने की जरूरत नहीं है। जीरो कोडिंग आती है तो एंड्रॉइड सीखने की जरूरत ही नहीं है। पहले तुम C++ सीख लो, C++ जावा, डेटाबेस से भी बेसिक नॉलेज ले लो, उसके बाद एंड्रॉइड पे आना, क्योंकि तुम्हारी प्लेसमेंट 90% ऑफ द टाइम तुमको DSL को ही पूछा जाएगा। शॉर्टलिस्टिंग प्रोजेक्ट तुम्हारे रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में हेल्प करेंगे, इंटर्नशिप में हेल्प करेंगे, बट 90% तुम्हारा इंटरव्यू DSL पे ही होगा। तो ये प्रोजेक्ट तो साइड में चलते रहेंगे, DSL को तो बहुत मस्त है अगर चाहिए तो, सही जॉब चाहिए तो। अच्छा, प्लीज कम अप विद सम क्वेश्चंस। अच्छा हाँ, वो कहते किसी ने पूछा क्लाउड पे पूछा, तो क्लाउड पे लाइक अगर बिल्ड वगैरह अगर करना होता है तो एंड्रॉइड में क्या सीन है क्लाउड पे बिल्ड करने का, जैसे रिएक्ट नेटिव में हो जाता है, एंड्रॉइड में क्या सीन है? क्लाउड का तो एक्चुअली मुझे पता नहीं है, बट इट विल बी कॉस्टली विद रिस्पेक्ट टू द एंड्रॉइड स्टूडियो ऐप, सो कॉस्टली पड़ेगा। बाकी इतनी नॉलेज नहीं है मुझे क्लाउड पे डेवलपमेंट। क्वेश्चन क्या था एक्चुअली? क्वेश्चन रिपीट करेगा क्या? मुझको आवाज नहीं है। ये था कैसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रॉइड ऐप ठीक ठाक बड़ा हो गया मेरा, ठीक है, अब हमको उसको बिल्ड करना है, तो बिल्ड मतलब करने के लिए हम क्लाउड चूज कर सकते हैं ना? क्लाउड का क्या सीन है मतलब कि बिल्डिंग के लिए? यार वो बिल्ड के लिए तो बिल्ड सिस्टम की बात कर रहा है क्या? हाँ, मैं बिल्ड सिस्टम की बात कर रहा हूँ एक्चुअली। क्लाउड का यूजफुल क्या है, यूजफुलनेस क्या है यहाँ पे कि बिल्ड सिस्टम में जो टाइम लग रहा है तेरा बहुत बड़ा हो गया, उसको कम करने का। हाँ हाँ, ऑब्वियसली कि हम उसको क्या बोलते हैं, उसका क्लाउड को तो मैंने कहीं देखा नहीं है कोई क्लाउड यूज कर रहा है इसके लिए। उसके अलग तरीके होते हैं, एंड्रॉइड स्पेसिफिक चीजें होती हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो में तो कुछ कर सकता है जिससे जल्दी बिल्ड हो जाता है, प्लस मॉड्यूल वाइज बिल्ड भी होता है उसमें। ग्रेडल का कॉन्सेप्ट है ये, एंड्रॉइड बिल्ड सिस्टम ग्रेडल यूज करता है ना काइंड ऑफ कोड कंपाइल करने के लिए, तो तुम ग्रेडल में मॉड्यूल बिल्ड करते हो। ओके ठीक है, मतलब जिससे वो जल्दी बिल्ड होता है। इंस्टेड ऑफ पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड करने के स्पेसिफिक मॉड्यूल्स बिल्ड करोगे। ग्रेडल का सिंटैक्स होता है पर्टिकुलर काइंड ऑफ, वो भी एक लैंग्वेज है, तो उस तरीके से। क्लाउड का तो नहीं देखा मैंने कहीं यूज होता है। इवन सैमसंग में भी मैं वेरिएबल्स पे काम कर रहा था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत लाइक सैमसंग का पूरा कोड था उसका, तो मॉड्यूल वाइज ही बिल्ड करते थे ग्रेडल कमांड से। अच्छा ओके, नहीं मतलब रिएक्ट नेटिव में एक्चुअली होता है कि अगर यू वांट टू बिल्ड ऑन वो, तो तुम बिल्ड सिस्टम मतलब ऑनलाइन बना लो एंड यू जस्ट डाउनलोड द ऐप, तो ठीक है। तो नहीं तो इसमें ऑनलाइन जरूरत नहीं है ना, लाइक ग्रेडल इज अ बिल्ड सिस्टम जो कि लोकली एंड्रॉइड स्टूडियो में चलता है। नहीं तो मतलब जो कॉटलिन जावा वाली एंड्रॉइड है, जैसे मेरा ही है, मतलब कि अगर लैपटॉप में हम एंड्रॉइड मतलब कि हम अपना एंड्रॉइड कंपाइल करते थे तो मुझे लगता था क्या बोलते हैं 15 मिनट, तो फिर मतलब कि एट लास्ट फिर क्लाउड पे कर दिया था तो 5 मिनट के अंदर हो जाता था वहां पे। तो that is that is a different thing to Docker or containerization. ठीक है, और कोई क्वेश्चंस भाई, क्वेश्चंस पूछो यार। ये भी एक क्वेश्चन होता है जावा और कॉटलिन का कि जावा सीखे कॉटलिन सीखे। यार प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हो तो जावा सीखो,
बाकी अगर प्रॉपर एंड्रॉइड में जाना है पहले जावा तो आनी ही चाहिए, बाद में कॉटलिन जावा सीख लेना। बाकी कॉटलिन पाइथन की तरह है एक्चुअली, तो अगर पाइथन आती है तो उसमें हेल्पफुल रहेगा, नहीं आती है तो लाइक बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा यूज पर तुम है। जावा करोगे तुम डीएसएल को भी कर सकते हो, बट कॉटलिन में तुम डीएसएल को करोगे उसका कुछ फायदा नहीं होगा, उसका कोई इंटरव्यूज में फायदा कुछ काम नहीं आएगा, नहीं। ठीक है ना? एग्जैक्टली। तो बेटर जावा ही कर लो, कॉटलिन की नॉलेज थोड़ी बहुत हो जाएगी, इजी है। कभी कोई कंपनी लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं देखती जनरली। पर ये जावा और सी तो प्लस प्लस पाइथन अलाउ दोनों नहीं करती। प्रेफरेबल है। जावा यार एंड्रॉइड स्टूडियो, ये जो आईडीई वाला क्वेश्चन है, एंड्रॉइड स्टूडियो एंड्रॉइड के लिए, और जावा की जो आईडीई बेस्ट है वो इंटेलिजी है, इंटेलिजी यूज कर सकते हो, मतलब मेरे को वो सही लगती है एक्लिप्स से बेटर। इंटेलिजेंट आइडिया या बेटर है। यार कोई है ही नहीं क्या यहाँ पे, लाइक बस इतने ही क्वेश्चंस हैं? नहीं तुम मतलब लोग कौन बच्चे से हैं, बैच की हो, लाइक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर? कल तो मैक्सिमम है यहाँ पे, कल तो फर्स्ट ईयर वाले ही मैक्सिमम है। अच्छा तो थोड़े से डरे हुए हैं आएगा। अब लोग फर्स्ट ईयर वाले ने कोडिंग कोडिंग स्टार्ट करी है अभी? हाँ थोड़ी थोड़े लोगों ने कितने लोग हैं जिन्होंने कोडिंग स्टार्ट नहीं करी अभी? मैंने नहीं करी अभी तक, कुछ भी नहीं पढ़ा इसके बारे में। फर्स्ट ईयर में तुम कोडिंग करो, उसके बाद जब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बीच में टाइम मिलता है उसमें डेटा स्ट्रक्चर और एंड्रॉइड एक साथ स्टार्ट कर सकते हो। तो किस बट लैंग्वेज से करना सही रहेगा? क्योंकि अभी कॉलेज में तो सी लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है। सी पढ़ाई जा रही, सी प्लस प्लस भाई बिल्कुल उसके जैसी है, ठीक। तो तुम चाहे तो सी प्लस प्लस सीख सकते हो या जावा सीख सकते हो। जावा में तुम्हें आगे प्रॉब्लम थोड़ा कॉलेज में देंगे क्योंकि जावा नहीं करवाते हैं जनरली, तो सी प्लस प्लस, हाँ सी प्लस प्लस सीख लो, उसके बाद तुम इजिली ट्रांजिशन कर सकते हो। जब एंड्रॉइड सीखोगे तो जावा में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो तुम सीख सकते हो उसको। तो मेरा प्रेफरेंस है कि सी प्लस प्लस सीखो। या हेलो यार, लेटेस्ट की बुक है यशवंत कानेटकर की, लाइब्रेरी से उसको इशू करा ले, पूरी बुक खत्म कर दे, वो बहुत बुक खरीद सिंपल लिए स्टफ भैया। में इजी सा स्टफ है। हाँ तो वो पढ़ ले, सी तेरी हो जाएगी, मुश्किल से 2-3 हफ्ते लगेंगे तेरे को बेसिक सी जानकारी, मतलब उसकी नॉलेज के लिए। भैया सी कौन प्लस सी प्लस बुक? फिर से सिंटैक्स सीख ले, लेट अस सी, यशवंत कानेटकर। हाँ यस। ओके सर। ठीक है, तो उससे तेरे को मतलब मान, हम यूट्यूब से भी कर सकते हैं ना सर? तेरी यूट्यूब आवाज और नहीं आ रही इंटरनेट है। सोर्सेज, यूट्यूब और इंटरनेट सोर्स। हाँ देख क्या होता है ना यार, कि यूट्यूब पे तो, यूट्यूब इंटरनेट पे तो जाता है ना, लेट से तेरे को बिल्कुल नहीं आती कोडिंग, ठीक है, तो वहाँ पे यार मतलब डिस्ट्रैक्शन काफी ज्यादा होते हैं। जैसे एक चैनल खोल के मैं देख रहा हूँ तो मल्टीपल वीडियो साइड में आ रहे हैं, बंदा लूप में फंस जाता है। तो मेरा बेटर अप्रोच ये होता है कि लेटेस्ट से बुक खत्म करने पहले, मुश्किल से 2 हफ्ते का काम है, तो तेरे को बेसिक नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद तू एंड्रॉइड कर, जावा कर, डीएसएल को पढ़, सब यूट्यूब पे है उसके लिए। चलो सौरभ भैया, हेलो हम्म। जी, एक्चुअली मुझे एक चीज पूछनी थी कि मेरी तो पहली बात, मेरी जो ब्रांच कोर ब्रांच है, तो उसके साथ मेरे को सी प्लस प्लस आती है, मैं डीएसएलगो पे काम कर रहा हूँ। क्या मैं उसके साथ एंड्रॉइड डेवलपमेंट साथ में चला सकता हूँ? क्या साथ में सीख सकता हूँ? यार बिल्कुल सीख सकता है, तो 24 घंटे डीएसएल को नहीं करता, मुश्किल से थोड़ा टाइम लगेगा एंड्रॉइड डेवलपमेंट में, 3-4 घंटे या 2 घंटे मुश्किल से। यार देख क्या होता है ना, डेवलपमेंट का बाद में तेरे को इतना काम नहीं आएगा, बट द कॉलेज टाइम में बेनिफिट ये होता है, जब जीसॉक होता है, आईसीपीसी होता है, तो कॉम्पिटिटिव कर रहा तो बढ़िया से कॉम्पिटिटिव कर, आईसीपीसी में जा। डेवलपमेंट कर रहा तो बढ़िया से डेवलपमेंट कर, अच्छी कंपनीज में प्रोडक्ट प्लेसमेंट इंटर्नशिप्स ले लो, या जीसॉक करो। लाइक ये सब जो टैग्स है ना, बेटर कंपनीज की इंटर्नशिप्स और ये जीसॉक का टैग बहुत मैटर करता है भाई बाद में, बहुत ज्यादा, आईसीटीसी वगैरह का टैग। तो दीज थिंग्स रिज्यूमे तुम्हारा काफी ऊपर जाता है शॉर्टलिस्टिंग में, तो तुम आराम से कर सकते हो यार। मैं भी तो यही कर रहा था, सी प्लस प्लस के साथ टीएसएल को और साथ में एंड्रॉइड। तो देखना ये वीडियोस जो मैंने डाली है ना यूट्यूब वाली, इस पे जाकर देख लियो, और ये मेरा गिटहब पेज है, ये सब कॉलेज टाइम पे ही बनाए थे। ओके तो लेट से तूने कोई सैंपल ऐप बना रहा है, कोर्स कर रहा है, साथ साथ में उसको गिटहब पे पुश करता जा रहा है, तो तेरी वहां भी प्रोग्रेस भी, रिज्यूमे बिल्ड हो रहा है गिटहब पे अकाउंट, और तेरा सीख भी रहा है तो साथ में एंड्रॉइड। तो तेरा लाइक कंपनीज ऑब्वियसली तेरा गो थ्रू करती हैं गिटहब, मोस्ट ऑफ द टाइम देखा मैंने, गिटहब अकाउंट तेरा खोल के जो रिज्यूमे में मेंशन्ड होता है वहां तेरा प्रोजेक्ट्स देखते हैं। और कई बार क्या होता है, वो तो कोड भी देखते हैं, तेरा कोड राइटिंग स्टाइल कैसा है। कोड राइटिंग स्टाइल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स के नाम जो होते हैं ना, सिंपल सी वही बात है कि किस तरीके से तू रख रहा है, कोड कैसे लिख रहा है तू। और कुछ
हाँ, और जो यूट्यूब वीडियो जो है ये बेसिकली इसलिए था कि लेट्स से मैंने कोई ऐप बनाई, तो लेट्स से मैं इंटरव्यू में बैठा हूँ तो बार बार उसको गिटहब खोल के तो नहीं दिखाऊंगा ना कोड। इट्स बेटर अगर उसको सैंपल ऐप देखनी है तो मैं वीडियो पे उसको दिखा दूँ यूट्यूब पे जाके, या मेरे पास फोन में वीडियो पड़ी हुआ है आपकी, तो वो बेटर रहता है एक प्रीव्यू दिखाने के लिए। ऐप ही खोल के दिखा दे तो। यार देख, उस टाइम क्या होता है ना, इसका भी देख रीजन क्या है। कई बार क्या होता है, लेट्स से मेरी ऐप कोई पर्टिकुलर एपीआई यूज कर रही है, तो जैसे मैंने एक ऐप बनाई थी वो IMDb की एपीआई यूज कर रही थी, तो ना उसमें लिमिटेशन होता है कि तुम फ्री वाली जो एपीआई होती है ना, उसमें लिमिटेशन होता है कि एक दिन में तो इतने हिट्स मार सकता है। तो लेट्स से तू लाइव दिखा रहा है ना आप खोल के, तो कई बार क्या होगा, लेट्स उधर से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है एपीआई का, तो तूने तो अच्छी बनाई थी लेकिन तेरा फ्री अकाउंट है तो दिक्कत हो जाएगी फिर वहां पे। तो इससे बेटर है स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करके रख ले फोन में, या यूट्यूब पे डाल दे, जो भी मर्जी तेरी। और आजकल तो यार वर्चुअल इंटरव्यूज हो रहे हैं, तो सीधा यूट्यूब खोली, अपनी साइट खोली और वो उनको गिटहब और यूट्यूब दिखा दिया अपना, तो बहुत सही इंप्रेशन पड़ता है इससे प्रोजेक्ट वाइज। बाकी तो देख DSL को तो पूछेंगे, तो 90% ऑफ योर इंटरव्यू विल बी DSL को। और बाकी ब्रांच मैटर नहीं करता यार, ब्रांच बिल्कुल मैटर नहीं सही ले जा रहे हैं कॉलेज में भी करता हूँ यार, देख कॉलेज में करता है ऑब्वियसली, बट ऑफ कैंपस में नहीं करता। ऑफ कैंपस में तो जामिया के नाम पे तेरे को हर कंपनी से कॉल आ जाएगी, इतना इतना श्योर हो जाए तो। ऑफ कैंपस में नहीं करता ब्रांच मैटर। देख मेरे को तो दिक्कत नहीं है यहाँ पे, अगर तेरा रिज्यूमे अच्छा है, तेरे को DSL की नॉलेज है, तो ब्रांच की आज तक दिक्कत नहीं हुई। ये DSL को मैं इसी ब्रांच का। DSL को का क्वेश्चन के लिए कृपया कर वीकली डिस्कॉर्ड पे आए। बोलते DSL को वीकली फ्राइडे पे चल रहा है, तो कृपया वहां ध्यान देते रहे। यार अभी तुम जनरल क्वेश्चन पूछ सकते हो, इन केस अगर जनरल पूछना हो, क्योंकि मैं यार उसके साथ हूँ नहीं मैं, मुझे भी अभी एक जनरल क्वेश्चन ये रहता है कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट कोई शुरू करते हैं तो क्या उसे ही फ्यूचर बनाना पड़ेगा, मतलब एंड्रॉइड डेवलपर ही एंड में निकलेगा या चेंज कर सकता है? यार देख क्योंकि ये आजकल ना ट्रेंडिंग पर है ना ML AI वगैरह, तो उस पे ज्यादा फोकस करते हैं आजकल बच्चे। तो यार नहीं होता है ना कि तू कोई भी टेक्नोलॉजी सीखता है ना, तो 2 साल बाद खुद ही बोर हो जाएगा। ठीक है, मैंने सेकंड ईयर में कॉलेज मतलब एंड्रॉइड स्टार्ट करी, DSL के साथ साथ 4th ईयर तक करा मैंने। अब मैं बोर हो गया एंड्रॉइड से, अब मैं बैकएंड में देख रहा हूँ। तो यार मतलब तू खुद ही बोर हो जाएगा, तू खुद ही सोचेगा। इवन तू किसी कंपनी में भी जाएगा ना, तो शुरू में मैं भी सोचे कि आई विल स्टे हियर फॉर एवर, बट ऐसा नहीं होता। तो 2 साल बाद उनके टेक स्टैक से बोर हो जाएगा, सोचेगा कुछ नया ट्राई करता है। तो ये तो होता ही है। बाकी जो ML AI वाली बात है ना, बाकी जो ML AI वाली बात है, यार देख वो तो तुम कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम फुल टाइम वही कर रहे हो। देख अगर तो रिसर्च साइड जा रहा है तब तो तू फुल टाइम करेगा। लेट्स से मैंने एक सिंपल ऐप बनाई, उसमें क्या था कि वो ऑडियो रिकॉग्निशन और वॉइस रिकॉग्निशन से पर्सन डिटेक्ट कर रहा था, बट सारी उसकी जो ट्रेनिंग थी ना, ऑडियो मतलब डेटा सेट की जो ट्रेनिंग थी, वो सब ऐप के अंदर ही हो रहा था। मतलब बेसिकली मैं एंड्रॉइड में जावा में ML का कोड रन कर रहा था, विच इज ऑफ पाइथन। तो इसमें तुम काफी चीजें सीखोगे, ML का भी कर रहे हो, एंड्रॉइड भी कर रहे हो, प्लस जावा में पाइथन का कोड रन कैसे करें, जावा में एंड्रॉइड रन कैसे करें, ये पाइथन एंड्रॉइड स्टूडियो में, उसके लिए तुम कुछ नई लाइब्रेरी देखोगे। तो सही है, एक साथ मल्टीपल चीजें हो गई, मल्टीपल चीज होती है। आगे ट्रांजिशन तुम कर सकते हो, एंड्रॉइड 1 साल सीख लिया, उसके बाद तुम AI या ML पकड़ के सीख सकते हो, उसका तुम मर्ज कर दो, तुम्हारे प्रोजेक्ट और अच्छे बनेंगे, तुम्हारी प्लेसमेंट और अच्छी हो। मैंने तो ये देखा है कि कभी ऐसा नहीं होता कि तू सॉलिडली तू एक ही चीज कर रहा है। जैसे एंड्रॉइड कर रहा हूँ तो मैं 1 साल तक एंड्रॉइड ही करूंगा, ऐसा नहीं होता कभी। लाइक तू और चीजें ट्राई करता तो खुद ही बोर हो जाएगा, फिर सोचेगा कुछ और ट्राई करते रहो। देख एक चीज कांस्टेंट रहती है, एक चीज कांस्टेंट रहती है DSL को, वो तो कांस्टेंट है, वो मतलब सीनियर लेवल पे भी करेगा ना अप्लाई तब भी पूछेंगे। बाकी डेवलपमेंट में तेरे ऊपर है। सौरभ भैया अलुमनी है, सौरभ भैया अलुमनी है, जो भी पूछ रहा है। सौरभ भैया भाई देख मैं EC का था 19 बैच, सॉरी मैंने इंट्रो नहीं दिया। आई पास आउट इन 2019 और मैं EC से था, एंड मैंने 1.5 साल सैमसंग R&D में काम करा, सैमसंग हेल्थ टीम में, वहाँ एंड्रॉइड करी बहुत ज्यादा। देन अभी मैं D-Shaw में जा रहा हूँ, तो D-Shaw अगर किसी को पता होगा तो वहाँ पे क्या बैकएंड में है? हाँ बैकएंड है यार वहाँ पे। आपका भी प्लेसमेंट ऑफ कैंपस था?
यार हाँ, मेरे देख ऑन कैंपस भी हो गया था, बट यार ऐसा होता है ना कि मे भी तेरे को बुरा लगे कि तेरा ऑन कैंपस बहुत अच्छा नहीं हुआ और तेरे से मे भी कुछ लोगों को अच्छा नहीं आता था, उनका बेटर हो गया, बट ठीक है यार, तू करता रहेगा ना, ऑफ कैंपस हो जाएगा, क्योंकि यार जामिया का टैग मतलब ठीक ठाक है। अच्छा भैया, हेलो, हाँ ऑन कैंपस का क्या हाँ कहते भाई हैं, बोल। कैसा है जामिया का? अभी तक तो बेटर था। यार ऑन कोरोना कैंपस काल तो में ब्रांच पे डिपेंड करता है। मतलब CS सीएस की कंपनीज CS बेसिकली आती हैं। सीएस की कंपनी बेसिकली कंप्यूटर आती है, तो प्लेसमेंट हो जाती है, अभी भी हो रही है, सभी की हो रही है, पर कोरोना की वजह से बड़ी कंपनीज नहीं आ रही हैं। इस बार 10 एलपीए के ऊपर एक भी कंपनी नहीं आई। इन जनरली आती हैं 20-25 तक आती हैं इवन। सो टाइम पर है, अब हम लोग का टाइम था, तो हम लोग इस टाइम में कंपनीज नहीं आ रही हैं, बढ़िया कंपनीज, छोटी छोटी कंपनीज आ रही हैं। पर एवरेज तुम्हारा, तुम एवरेज स्टूडेंट हो तो 6 to 7 एलपीए तो ले जाओगे आराम से, तो उसकी इतनी टेंशन मत लो। अनस तू फोर्थ ईयर बिल्डअप में है करो। क्या? सॉरी, फोर्थ ईयर में है तू? हाँ हाँ। अच्छा हेलो। अच्छा भैया, हेलो। यार मैं इस पे ऐड कर रहा था, एक सेकंड रुक जा। इस पे मतलब सीन ये है कि जैसे ऑन कैंपस ना हो जाएगा तेरा, लेट्स से तू सीएस और ईसी का है, तो मिनिमम लाइक 4 लाख का तो हो ही जाएगा, ठीक है? तो यार उसको लेके बैकअप के लिए रख ले उसको, बाकी ऑफ कैंपस करता रहे। ऑफ कैंपस बहुत अपॉर्चुनिटीज आती हैं, 15-15, 20-20 पे पहुंच जाएगा तू, तो जरूरी नहीं कंपटीशन कि भी जैसे तेरा रहता है ऑन ना कैंपस हुआ तो। ऑफ कैंपस पे, हाँ कंपटीशन भी यार, ऑफ कैंपस ना कंपटीशन होता है, हम्म, बट यार हो जाता है, जितना मैंने देखा ना लोगों का, हो जाता है मतलब। ओके। और देख बाकी जो ईसी के नीचे वाली जितने ब्रांचेस है ना, सिविल वगैरह, तो उनको तो यार ऑफ कैंपस ही ट्राई करना पड़ेगा, तो इससे बेटर है तुम अभी से रिज्यूमे बिल्डिंग में लग जाओ, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दो और डीएसएल को स्टार्ट कर दो, जो फैजल कर रहा है काइंड ऑफ। जी सौरभ भैया, हेलो। हाँ हेलो डीएसएल को कहाँ से कर सौरभ रहे हैं? भैया, हाँ बोल। जी एक्चुअली मैं बोला कि जो मेरी ब्रांच एक्चुअली मैकेनिकल है, और मैं मतलब यही थर्ड सेकंड सेमेस्टर से ही मैं कोडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ कॉलेज से मैंने। तो मैं डीएसएल हाँ पे काम कर रहा हूँ, साथ में जो एंड्रॉइड डेवलपमेंट का मेरे को किसी ने सजेस्ट किया था किसी ने कि साथ में सीखो, तो एक्चुअली जो मेरे को सीखना था एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वो इसीलिए मैं इस पे ज्वाइन हुआ, ताकि मुझे सीखना है एंड्रॉइड डेवलपमेंट। तो क्या मुझे कितना टाइम लगेगा अभी से अगर मैं स्टार्ट कर दूं डेवलपमेंट तो? यार देख, तो क्लब में आएगा ना, तो आई डोंट थिंक तो तेरे को सीखेगा तू काइंड ऑफ तेरे को रोड मैप मिल जाएगा, जैसे अनस ने प्रेजेंटेशन दिया, तू पीपीटी गो थ्रू करेगा, तेरे को रोड मैप मिल जाएगा, बाकी तेरे को सीखना खुद से ही पड़ेगा। लेट्स से तू कोर्स लेता है कोई, तो 3-4 अच्छा। घंटे का कोर्स है, तो खुद ही सीखना पड़ेगा। यार देख, करने के लिए ना मैंने जावा जो है ना, पूरी जावा, मतलब मेरे को जावा का बिल्कुल नॉलेज नहीं था, मैंने पूरी जावा 15 दिन में करी थी, और जो मैंने 15 दिन में सेकंड ईयर में जावा करी थी ना, उससे मतलब आज तक इंटरव्यू उसके बेसिस पे क्लियर कर रहा हूँ, जावा के सारे इंटरव्यू। तो यार करने के लिए तू इतने टाइम में भी कर सकता है, डिपेंड करता है तू कितना एफर्ट डाल रहा है। तो यार तेरे को बताया ना, इस तरीके से काम करो। लेट्स से तू कोई कोर्स कर रहा है एंड्रॉइड का, तो जो उनके लिए ऐसा होता है कि 4-5 चैप्टर्स हैं कोर्स में, ठीक है? तो चारों चैप्टर्स की वो ऐप बनवाएंगे अलग अलग, तो हर ऐप का ना मतलब कोड करते करते गिट को पुश करता था, तो साथ में गिट भी सीख रहा है और एंड्रॉइड भी सीख रहा है, और तेरा जो प्रोफाइल है गिटहब पे वो भी बिल्ड हो रहा है, तो तीनों काम तो एक साथ कर रहा है, समझ रहा है? तो इससे सही रहता है। ओके। और बाकी दिन का 2 घंटा डीएसएल एंड्रॉइड को करा, कहाँ से करना है बाकी भैया? DSL को करेगा। पीएस कल का मतलब कि कल गिट का सेशन होने वाला है, तो अगर गिट मतलब सीखना है तो कल वाले सेशन में आ जाना, वेबडी वाले में, तो मतलब कि गिट का एक इंट्रो मिल जाएगा। भाई डीएसएल को गिट कहाँ तो से करना? मतलब ऐसा है कि हेलो। देखिए 2 क्वेश्चन है, एक सेकंड पहले दोनों को आंसर कर लेता हूँ मैं। गिट का जो है, गिट की तो भाई पूजा करना, गिट तो आना ही चाहिए यार, मतलब कंपनी में भी एंड यहाँ भी। तो गिट का यार तेरा प्रोफाइल भी यूज बिल्ड हो करना रहा है ही वहाँ पे, पड़ेगा तो तुम्हें। ऑब्वियसली तू शेयर कर सकता है किसी के साथ। टीम में जब काम करेगा तो गेट यूज करना ही पड़ेगा तुम्हें, तो उसका कोई ठीक है सौरभ भैया, यार, गिट का अपना हो गया। नंबर बाकी डीएम ये कर दो। डीएसएल को पूछ रहा था यार, डीएसएल को किसी ने पूछा था यार, डीएसएल को का ना ऑनलाइन गीक्स और गीक्स बेस्ट है प्रैक्टिस के लिए। देख मैं तो लीड कोड यूज कर सकता हूँ, मैं तो लीड कोड यूज करता हूँ, बाकी किसी को कॉम्पिटिटिव में इंटरेस्ट है ना, अगर ढंग से कॉम्पिटिटिव करनी है, कोडशेफ ट्राई कर लेना। लाइक कोडशेफ सही है अगर कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल बनानी है तो, क्योंकि यार एक ही बात है, देख तेरे को तू जो सीख रहा है वो तेरे को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वहां पे सॉल्व करना है तेरे को प्रॉब्लम, तो यार लीड कोड पे कर ले, और कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल बनानी है तो कोडशेफ पे चले जा। भैया सीखो कहाँ से?
ये कोड शेफ का यार जो अब सीखना है गीक फॉर गीक्स कर ले यार। ऑनलाइन इतने कोर्सेज हैं यूट्यूब पे भर भर के मिल जाएंगे तेरे को। लाइब्रेरी कोई में स्पेसिफिक मेरे को नहीं पता। लेकिन मैं ऐसे करता हूँ ना कि एक टॉपिक्स अपने से देख लिया तूने, ये टॉपिक्स हैं, और इंडिविजुअल टॉपिक को नेट पे सर्च मार लिया या तो गीक फॉर गीक्स पे पढ़ लिया, वहां समझ नहीं आया तो उससे वीडियो देख ली। टॉपिक वाइज तू ऐसे कवर कर सकता है। लेट्स से एरे से स्टार्ट कर रहा है, एरेज के तू क्वेश्चन तो तेरे को मिल ही जाएंगे, तो वो तो एरेज तो कुछ ऐसा है नहीं जो तेरे को सीखना है। तो लेटेस्ट की बुक करेगा तो तेरे को बेसिक आइडिया हो जाएगा मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है एरे में, तो डेटा एलोकेशन एंड ऑल। बाकी क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करना वो गीक्स और गीक से करेगा, लीड कोड से करेगा, कोड शेफ से करेगा। लेट्स से तेरे को डेटा स्ट्रक्चर सीखना है, जैसे ट्री व्री ये सब है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों को लिंक लिस्ट में स्टार्टिंग में, तो वो तो यूट्यूब से कर सकता है। डीएस से पहले करनी चाहिए या फिर एमएल और वेब डेवलपमेंट? यार देख डीएस तो भाई ऐसा है ना, डीएस तेरी जिंदगी भर काम आएगी, डीएस तो करनी ही चाहिए तेरे को। बोल रहा हूँ तेरा 90% इंटरव्यू डीएस के बेसिस पे होगा। बाकी जो तेरा रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग है और इंटर्नशिप है थोड़ी बहुत, उसमें ही तेरा डेवलपमेंट डीएस काम में आप होता कहाँ है। तक बता रहे हैं? ML जो है ना एडवांस यार, डीएस तक बता रहे हैं? डीएस में कहाँ तक बता रहे हैं? ग्राफ, यार ट्री, ये सब बता रहे हैं क्या? एवीएल तक? यार ट्री तक ही कर ले काफी है, एवीएल करने की जरूरत नहीं है। ट्री तक ही कर लिया काफी है, बाकी डिपेंड करता है तो कितने क्वेश्चंस लगा रहा है। वो आप क्या कह रहे हैं कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आनी चाहिए, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, यहाँ तक आना चाहिए बस, या फिर और भी आगे पढ़ना है? भैया यार कोई ऐसे यार कैन आई इंटरप्ट? देखो हाँ बोल। डीएस का मतलब कि हम लोग रेगुलरली करवा रहे थे, तो एंड्रॉइड तक रखो तो ज्यादा बेटर है बोलते मेरे हिसाब से, ताकि मतलब कि एंड्रॉइड का मिले। डीएस का हम लोग मतलब कि रेगुलरली करवा रहे हैं और कहते अच्छे अच्छे लोगों से भी करवा रहे हैं, तो कृपया डीएस वाले को डीएस में रहने दो, एंड्रॉइड का क्वेश्चन एंड्रॉइड में रहने दो। मतलब कि ये मेरी वो है, ताकि वो बना रहे, ठीक है? हाँ यार सही कह रहा है। मतलब कि डीएस की ना हर वीक ही मतलब कि हर वीक एक सेशन हो रही है, और हर वीक वी आर मतलब कि ट्राइंग की कोई अच्छा बंदा मतलब जिसने अच्छे मतलब इंटरव्यू क्रैक किए वो आए और वो भी बताए। तो डीएस वाले में मतलब कि डीएस वाला, क्योंकि डीएस फिर एकदम टेंजेंट हो जाता है ना एंड्रॉइड से, तो एंड्रॉइड स्पेसिफिक रखो क्वेश्चन तो ज्यादा बेटर है। डीएस के लिए हम लोगों ने 2-3 सेशन पहले ले चुके हैं, तो वहां पे भी आओ और अभी वाले में भी आओ, तो इट विल बी कॉटलिन बेटर। सीखने में कितना टाइम लगेगा? क्या कॉटलिन यार देख लगने के लिए तो यार तेरी उम्र लग जाएगी पूरी। नहीं लगने के लिए भाई एक हफ्ते में सीख लेगा। फिर भी बेसिक्स वगैरह? यार ऐसे मत पूछा कर भाई कितना टाइम लगेगा। तुम्हारे उस पर है कितना टाइम दे सकते हो तुम। नहीं तो हफ्ते में भी सीख सकते हो, महीने में भी सीख सकते हो, या सीखते रह जाओ, पूरा नहीं होगा तो इट्स कॉटलिन ज्यादा अच्छी है या फिर रिएक्ट नेटिव? यार यूज पर है। कोटलिन तुम सिर्फ एंड्रॉइड पे यूज कर सकते हो, रिएक्ट नेटिव का इतना नॉलेज नहीं है, पर आई थिंक रिएक्ट में क्रॉस प्लेटफॉर्म पे रहेगा, तो ये रिएक्ट नेटिव सीखना बेटर है ऑब्वियसली। अच्छा हेलो भैया, हेलो। हाँ बोलो। हाँ भाई हाँ भाई। हाँ हम ये कह रहे थे सर भैया कि अगर फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट है तो उसमें मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग में तो उसका प्लेसमेंट का क्या रिकॉर्ड है मतलब जामिया में? आई डोंट थिंक कोई इशू होगा, पर स्पेशल सीट्स आती हैं पीडब्ल्यूडी की, अभी आई थी इस बार यूएचजी से, तो अलग से भी आती हैं, बाकी साथ में भी नॉर्मली अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है मेरे ख्याल में। यार मैंने अपना नंबर दे दिया, किसी को कांटेक्ट करना हो कर लेना। एक्चुअली मेरे को डीएसए वाला आइडिया नहीं था कि डीएस का अलग से सेशन होता है। क्या ठीक है, डीएस का लगातार हो रहा है भाई? मैंने नंबर दे दिया, किसी को अगर कांटेक्ट करना हो कर लेना। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन है एंड्रॉइड रिलेटेड कि हमने डन? फ्रंट एंड और बैक एंड भी होता है क्या एंड्रॉइड डेवलपमेंट में? हाँ फ्रंट एंड यार वही जो स्क्रीन पे तुम्हें दिखता है, मोबाइल को ऐप खोलते हो तो स्क्रीन पे जो दिखता है उसे फ्रंट एंड कहते हैं। जो बैक में काम कर रहा है, कि जो क्लिक कर रहा है तो कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, वो सब बैक एंड होता है।
तो एक जैसे बार मान लिए मुझे जावा या फिर कॉटलिन में ऐप डेवलप करना है, ठीक है, तो अब ये हम्म बता दिए कि फ्रंट एंड और बैक एंड में कौन सी लैंग्वेज यूज करूँ। यार बैकएंड में ही कॉटलिन और जावा होती है, फ्रंट एंड बहुत मुश्किल नहीं होती है। फ्रंट एंड में एक्सएमएल यूज होता है, तो वो तू सीख जाएगा जब तू लर्न करेगा। ये एंड्रॉइड डेवलपमेंट शुरू करेगा तो अपने आप सीख जाएगा। मैंने कभी और अलग अगर से लर्न नहीं किया। और अगर मैंने रिएक्ट नेटिव यूज करी है तो फ्रंट एंड में रिएक्ट नेटिव यूज कर लूंगा और बैक एंड में नोड जेएस, हाँ या फिर जांगो वगैरह भी यूज कर सकता हूँ बैक एंड में। इसका मुझे नॉलेज नहीं है इसका। देखो जो अनंत बोल रहा है ना, उसमें एक्चुअली दो प्रकार के बैकएंड है। एक प्रकार का बैकएंड है जो कि क्लाउड वाला है, एक प्रकार का बैकएंड है जो कि तुम्हारा ऐप का बैकएंड जो कि ऐप में काम कर रहा है, ठीक है। तो जो जहाँ पे जैंगो का क्वेश्चन है, क्लाउड वाला बैकएंड में तुम जैंगो यूज करो, नोड यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ऐप वाला बैकएंड है वहां पे मतलब कि कोटलिन या जावा ही कुछ होगा, ठीक है। तो दीज आर दो काइंड ऑफ बैकएंड जो कि अनंत बात कर रहा है एक्चुअली। तो फ्रंट एंड में भी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करी जाती है। जैसे अगर हम वेबसाइट बनाते हैं तो जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसी तो जब हम जावा ऐप बनाएंगे तो फ्रंट एंड में तो कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे लॉजिक के लिए फ्रंट एंड में। अनस सॉरी, रिपीट करना क्वेश्चन। जैसे मान लिए मुझे वेबसाइट बनानी होती है, ठीक है, तो मुझे एक तो बैक एंड का नॉलेज चाहिए होता है, मतलब बैक एंड में लॉजिक लगाता हूँ मैं और एक फ्रंट एंड में लॉजिक लगाता हूँ। फ्रंट एंड में जैसे आप ये मान लिया वैलिडेशन, मैंने मान लिया HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में फॉर्म का जो वैलिडेशन करता हूँ, तो उसमें मैं जावास्क्रिप्ट लगाता हूँ फ्रंट एंड में। और बैक एंड में वैलिडेशन करने के लिए डाटाबेस से मतलब वैलिडेशन करता हूँ, डाटाबेस से पासवर्ड और यूजर नेम वगैरह चेक करता हूँ, अगर सही होता है तो उसे ऑथेंटिकेशन दे देता हूँ, अगले पेज पे चला जाएगा, ठीक है। अब ऐसी एंड्रॉइड डेवलपमेंट में मैंने मान लिया लॉगिन पेज मैंने बनाया है, ठीक है। अब उसमें मैंने सबसे पहले फ्रंट एंड के लिए यूजर नेम और पासवर्ड ले लिया। अब यूजर नेम की एम्प्टी फील्ड दे दी उसने और पासवर्ड की एम्प्टी फील्ड दे दी, तो बैक एंड तक रिक्वेस्ट जाए नहीं, वहीं पे वैलिडेशन मतलब रुक जाए, तो ये मतलब फ्रंट वहां से एंड का लॉजिक हो गया। और बैक एंड में जाके डाटाबेस से कनेक्टेड होता है बैक एंड, क्योंकि तो वहां पे जाके वहां पे चेक करे पूरा के मतलब डाटाबेस में यूजर एग्जिस्ट करता है, तो फिर वहां से रिक्वेस्ट आए, मतलब कुछ ये पूरा जो मतलब स्ट्रक्चर है। तो तो ये बता दिए कैसे होता है एंड्रॉइड में। एंड्रॉइड में यही होता है। एक्सएमएल में तुम लिखोगे कोड, स्क्रीन का इनपुट का टेक्स्ट वगैरह फील्ड्स का, उसके बाद उस पर बटन रहेगी, हर एक आइटम पे आईडी रहेगी, फिर बैकएंड से वो कनेक्ट रहेगा तुम्हारा। फ्रंट एंड बैकएंड से कनेक्ट रहता है ना, तो उसके बाद वहां बैकएंड में तुम डेटाबेस कनेक्ट रखोगे, तो वहां से तुम कॉल करोगे, वहां से तुम टेक्स्ट ले लोगे फ्रंट एंड का एक्सएमएल की कोडिंग से, उसके कनेक्शन से, ठीक है। बाकी काम तुम्हारा बैकएंड का ही रहेगा, फ्रंट एंड बस तुम्हें दिखाएगा क्या हो रहा है। बाकी काम तुम्हारा पूरा जो मैचिंग होगा, डेटाबेस से फेचिंग होगा, वो सब बैकएंड ही करेगा। तो समझे? अच्छा, तो कुछ अलग नहीं सीखना है तुम्हें फ्रंट एंड यूज करने के लिए। कुछ जावा में बहुत आप बैकएंड के हाईटेक लिए कौन सी लाइब्रेरीज यूज करते हैं रिक्वेस्ट लेने के लिए, जैसे गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट लेते होंगे तो? डेटाबेस से नहीं, फ्रंट एंड से गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट आती है ना, तो जावा में आप लेने के लिए वो रिक्वेस्ट कोई लाइब्रेरी यूज करते जावा हैं में क्या? देखो और डेटाबेस कौन सा यूज करते हैं आप? एसक्यूलाइट MySQL कौन सा? एसक्यूलाइट SQL रहता है मोबाइल, हाँ मोबाइल में एसक्यूलाइट रहता है। बाकी क्लाउड पे तुम यूज करो, कभी करोगे एंड्रॉइड डेवलपमेंट में, तो मोस्ट प्रोबेबली क्लाउड ही यूज करोगे, ठीक है। बहुत रेयरली यूज होता है, वरना रूम है, वो तुम्हारा टूल है, जो लाइब्रेरी है, जो हेल्प करेगी तुम्हें। एसक्यूलाइट बिल्कुल बेसिक से नहीं बनानी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद रही बात लाइब्रेरीज की, तो एंड्रॉइड स्टूडियो तुम्हारा इनबिल्ट लाइब्रेरीज यूज करता है। बाकी तुम्हारे इंपोर्ट अपने आप कर देगा, तो तुम्हें इतना वो सब याद करने की या लर्न करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम कनेक्शन करोगे, सिंपल सी लाइन है, उसे लिख दोगे, कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इतना वो नहीं है। तुम एंड्रॉइड स्टूडियो पे कमांड रहनी चाहिए, क्या कौन सा क्या काम करता है, बाकी सब वो तुम्हारा कर देगा हेल्प। वैसे मैं तो रिएक्ट नेटिव सीख रही हूँ। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है? लो स्पेक्स वाले पीसी में एंड्रॉइड डेवलपमेंट करने की कोई उम्मीद है? कितना लो है?
4 GB रैम, HDD और AMD A9 प्रोसेसर। करो, बताया तो मैंने, लिखा तो था चैट पे। यूज तुम कर सकते हो, चलेगा, नॉर्मली चलेगा, पर तुम्हें टेस्टिंग के लिए अलग से फिजिकल मोबाइल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इमुलेटर यूज करोगे तो बहुत स्लो हो जाएगा तुम्हारा सिस्टम, कोडिंग तुम्हारी हाँ, स्लो। फोन तो यूज कर ही सकते हैं। हाँ, तो फोन यूज करो, आराम से करो, 4G पे भी चलेगा मतलब बढ़िया। बहुत कंपाइल होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहेगा उसका, आराम से। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है? अच्छा लगा सौरभ भैया और कल अनस बात करके, मजा आया, हमको तो आया। और जो बाकी क्वेश्चन है तुम लोग ग्रुप पे डाल सकते हो, अनस से पीपीटी लेके हम ग्रुप पे डाल देंगे, ठीक है? या श्योर। चलो फिर। भैया, ओके गाइस, थैंक यू, बाय। ओके, थैंक यू सर भैया, थैंक यू भैया। चलो, थैंक यू, वी आर एंडिंग द मीटिंग। So thanks Anas for coming and thanks to all of you to join. I guess थोड़ा useful रहा होगा।